Yes, students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. Today we will study what we had learned earlier. So all about to this sequence, we need to learn that what the next and what is the basic difference in between debenture, preference shareholders as well as the equity shareholders. Basically, all these three are the business partners and they provide us the finance for our business. So what is the difference in between these two? We need to learn all these three one by one. So first is we need to discuss debenture. Second, preference shares. And third, equity shares. So we need to learn what is the difference in between these three. First is debenture, second is preference share, and third is equity share. Students, suppose your business has taken loan by all these three combinations. So first of all, we are assuming that business arranged the finance from debenture. So we are discussing that suppose our business arranged the finance from debenture rupees 1 lakh. So 1 lakh they had taken from the debenture source, as well as they had taken 1 lakh rupees from preference share source, and parallel they had taken 1 lakh rupees from equity share source. So this time we have three sources of finance. First of all, debenture, preference share and equity share. Students, you need to learn at first that in terms of debenture, we have a basic category that percentage rate of debenture is always indicated on the top of debenture. So this may be of 7% debenture, 6% debenture, 10% debenture, 9% debenture. What kind of debenture does not matter, but percentage rate is indicated. So this person, suppose we are considering this is 8% debenture. On the same scenario, next we need to learn the difference for the preference shares. So as the rate of interest is indicated in debenture, on the same way in preference share, rate of interest also indicated. So suppose this is the preference share and rate of interest they are indicating dividend, it is 5%. So this may be considered as 8% debentures and this may be considered as 5% preference shares. On the same way, on third part, they have equity shares, but in terms of equity share, no percentage rate is prescribed. इक्विटी शेयर पर कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं होता है. तो फिलहाल हम ये क्वेश्चन के लिए मान के चले हैं कि हमारे बिजनेस ने तीन जगहों से पैसा उठाया, फाइनेंस अरेंज किया, 1 लाख रुपए अरेंज किया डिवेंचर से, 1 लाख रुपए अरेंज किया प्रीफरेंस शेयर से और 1 लाख रुपए अरेंज किया इक्विटी शेयर से. तो मैंने समझाया कि बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि डिवेंचर जो है इससे 1 लाख रुपए उठाया लेकिन 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रीफरेंस शेयर पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता. डिविडेंड को बोलते हैं, प्रीफरेंस को बोलते हैं डिविडेंड, 5% डिविडेंड पेमेंट. अब स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि सपोज बिजनेस करे जाने पर सबसे पहले नंबर पर एज्यूम किया गया कि ये कौन कौन से प्रकार की फंडिंग्स हैं. तो फंडिंग में इसमें डिस्कस हुआ फंड्स टाइप. तो फंड्स के टाइप की कैटेगरी में अगर डिस्कस किया जाए तो डिबेंचर एक प्रकार का लोन है. अगर डिबेंचर का एग्रीमेंट हुआ तो कैसा एग्रीमेंट है? लोन एग्रीमेंट है, बिजनेस ने लोन उठाया. जबकि जो प्रीफरेंस शेयर और ये जो एग्रीमेंट है ये ओनरशिप एग्रीमेंट है. इसमें जो पर्सन इस सामान को परचेज करेगा उसमें ओनरशिप का एंटाइटलमेंट उसके पास आएगा. तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी हुई, ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है? ओनरशिप. नंबर नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स, तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनको बिजनेस मीटिंग्स में वोटिंग राइट का पावर नहीं मिलता है. जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको कुछ कंडीशंस में वोटिंग राइट होते हैं और कुछ कंडीशन में नहीं भी होते हैं. तो इनका वोटिंग राइट कौन सी प्रकार का है? दैट डिपेंड्स. तो इनका सेकंड कंडीशन है वोटिंग राइट. तो वोटिंग राइट में इनको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन. लेकिन इनका जो वोटिंग राइट है वो बिल्कुल सॉलिड है, कंफर्म है, इनका वोटिंग करने का पूरा पूरा अधिकार है.
कंपनी की जब कोई मीटिंग होगी, जब कंपनी की कोई बातचीत होगी, तो इनको वोटिंग करने का पूरा मौका मिलेगा। तो वोटिंग राइट भी पूरे हैं। नेक्स्ट नंबर पर इसके अंदर में इनका आता है कि अगर सपोज मान लो कि बिजनेस को, एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बिजनेस के द्वारा अरेंज कर लेने के बाद भी सपोज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, एक नंबर 1 कंडीशन मान लेते हैं 5,000 रुपये। तो हमने एज्यूम किया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है और सपोज प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपये, 5,000 का प्रॉफिट। तो अगर बिजनेस का प्रॉफिट 5,000 का है तो ये मेंबर्स में कैसे कैसे बटेगा। तो यहां स्टूडेंट यही एक खास बात सीखने की है। डिबेंचर होल्डर जो होगा, ये बिजनेस में अपने हिस्से का प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए, डिबेंचर होल्डर अपने हिस्से का बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंडीशंस में एंटाइटल्ड होगा। यानी प्रॉफिट होगा तो भी वो अपना हिस्सा ले लेगा और लॉस होगा तो भी वो अपना हिस्सा लेगा, उसको इससे कोई देना लेना नहीं। तो 1 लाख रुपीस का तो इन्वेस्टमेंट किए हुए है और 8% का इंटरेस्ट एग्रीमेंट है, तो कायदे से इनका इंटरेस्ट का पोर्शन बनता कितना है, 8,000 रुपीज। जबकि फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट कितने रुपए का है, 5,000, तो भी कोई बात नहीं। ये जो डिबेंचर होल्डर है ये 8,000 रुपये इसको पूरे दिए जाएंगे। डिबेंचर होल्डर का कहना ये है कि आप मशीन बेच के लाओ, बिल्डिंग बेच के लाओ, या फर्नीचर बेच के लाओ, या खुद को बेचे आओ, कुल मिलाकर के मुझे तो मेरे पैसे का पूरा इंटरेस्ट चाहिए। मैंने तो लोन प्रोवाइड किया है, तुम्हारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या तुम्हारे बिजनेस में होने वाले लॉस से मेरा कोई देना लेना नहीं है, मुझे मेरे हिस्से का लोन पर अमाउंट चाहिए। तो इनको तो 5,000 के बदले से 8,000 की पूरी इंटरेस्ट चाहिए। इस केस में था ही प्रॉफिट 5,000 का, जैसे तैसे करके अरेंज कर आके इसको 8,000 पकड़ा दिए। इनको इस केस में कुछ नहीं मिलेगा और इनको भी इस केस में कुछ नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो बिजनेस में 3 जगह से पैसा उठाया, तीनों से 1-1 लाख रुपए उठाया, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी इक्वल नहीं हुआ। पहले वाले से 8,000 मिले, दूसरे वाले से कुछ नहीं मिला, तीसरे वाले से कुछ नहीं मिला, वो तीसरे वाले को कुछ नहीं दिया, जबकि पहले वाले को 8,000 का इंटरेस्ट दिया। इनको डिविडेंड के नाम पे कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं, क्योंकि ये जो है इन्होंने कंपनी में शेयर लगाया है, तो ये लोग ओनर फंड हुए। तो जो बिजनेस के ओनर्स हैं, मालिक लोग हैं, उनका बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में हिस्सा तब बनेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तभी तो डिविडेंड मिलेगा, लाभांश, लाभ का अंश। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट पाने का ये हकदार कब होगा, जब इनको बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट का पार्टीशन मिलेगा। ठीक है, जबकि ये जो पर्सन है इसने तो कोई लाभांश वाली बात ही नहीं करी, इसने कौन सी बात करी, इंटरेस्ट वाली। तो ये कह रहा है कि लॉस हो तो आपका हो, प्रॉफिट हो तो आपका हो, मुझे तो मेरे पैसे की इंटरेस्ट दे दो। इसको तो इंटरेस्ट के मतलब है इंटरेस्ट मिलेगी। अब सेकंड नंबर की बात आती है कि मान लो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट 5,000 की जगह पर सपोज बिजनेस को प्रॉफिट 10,000 रुपये का होता, तो अगर प्रॉफिट का अमाउंट 10,000 रुपये का होता तो ये लोगों में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता। 10,000 के प्रॉफिट हो जाने पर सबसे पहले नंबर पे ये पर्सन को कितना हिस्सा मिलेगा, 8,000 रुपये। इनको इनके इंटरेस्ट के बराबर के पैसे मिलेंगे, इनको 8,000 ही मिलेंगे, इनको कमती बढ़ती से कोई देना लेना नहीं। समझ में आता है। जबकि अब जो पैसे बचे हैं ये दोनों ही लोग शेयर होल्डर्स हैं, एक प्रीफरेंस और एक इक्विटी। तो पैसे अब प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए बचे कितने हैं, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का बंटवारा कैसे होगा, ये तो अपना इंटरेस्ट लेके अलग हो चुका। तो 2,000 के बंटवारे में प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 5% के एक्सटेंट तक, तो 1 लाख रुपए पर 5%, 5,000 बनते हैं ना, तो 5,000 रुपए तक प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रीफरेंशियल राइट है, अधिकार है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। ध्यान रखने की बात है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हिंदी में बोलते हैं पूर्व अधिकार, पहले मिलने वाला लाभ, पूर्व अधिकार, पहले बेनिफिट। तो इनको जो फर्स्ट राइट मिल रहा है, पहले बेनिफिट मिल रहा है, वो किन के कंपैरिजन मिल रहा है, इनको फर्स्ट राइट इक्विटी के कंपैरिजन, डिबेंचर के अगेंस्ट नहीं है। इनको फर्स्ट राइट, प्रीफरेंस शेयर को फर्स्ट राइट है, प्रीफरेंस है, प्रीफरेंस शेयर को फर्स्ट राइट है, प्रीफरेंस है। किसके कंपैरिजन प्रीफरेंस है, इक्विटी शेयर। ये बात कुछ हद तक ऐसी हो गई जैसे बस में एक सीट खाली है, तो एक सीट खाली है तो चांस की बात यह हुई कि एक लेडी मेंबर और एक जेंट्स मेंबर, दोनों मेंबर एक साथ बस में चढ़े, सीट खाली एक है।
तो ये तय हुआ कि भाई लेडी मेंबर है, इसको आप सीट दे दीजिए। तो प्रीफरेंस राइट मिल गया लेडी को इन कंपैरिजन टू जेंट्स। अब बस 2 ही कदम बस आगे और चली, इतनी ही देर में एक और पर्सन आ गया। ये किसी रोड पे सीरियसली इंजर्ड था और इसको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब उससे थोड़ी कहेंगे तू खड़ा रहे, मेरे लिए सीट नहीं है। तो अब भले ही से वो लेडी थी, उसको सीट छोड़नी पड़ेगी। तो लेडी को प्रीफरेंस राइट तो है, लेकिन किसकी अगेंस्ट प्रीफरेंस राइट है? ठीक ठाक पर्सन के, हेल्दी पर्सन की अगेंस्ट। कोई बीमार है और बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है तो उसकी अगेंस्ट प्रीफरेंस राइट थोड़ी है। तो इस प्रीफरेंस शेयर को प्रीफरेंस राइट किसके अगेंस्ट है? इक्विटी के अगेंस्ट, ना कि इसके अगेंस्ट। तो कुल मिलाकर के 5,000 रुपए तक का पहला पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो अभी जैसे प्रॉफिट 10,000 का हुआ था, 8,000 इंटरेस्ट के ये ले गए, तो इनको कितना हिस्सा मिल जाने का है? 2,000 रुपए। और इस केस में इनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी इक्विटी वाले का फिर से कोई नंबर नहीं आया। अब तीसरी कंडीशन मान के चलते हैं कि सपोज बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए कि ये प्रॉफिट अब की बार हमने माना 15,000 रुपए का हुआ। तो 15,000 का मुनाफा, 15,000 का बंटवारा कैसे कैसे होगा? तो 15,000 के बंटवारे में 8,000 रुपए इन्हें मिल जाएंगे। 15,000 के बंटवारे में इनको प्रीफरेंस राइट है 5,000 रुपए का, तो 5,000 इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। इनका तो इतना तो पक्के में है, प्रॉफिट होगा तो पहले 5,000 इनको पक्के में मिलेंगे। तो देखा जाए तो 8 और 5 13, 13,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। तो अब टोटल मिलने का कितना हिस्सा था? 15। और कितना हिस्सा मिल चुका? 13। तो अभी कितना हिस्सा मिलने को बाकी रहता है? 2,000। तो जो 2,000 रहता है वो अब मिल जाएंगे पहली बार इक्विटी शेयर होल्डर को। कुल मिला के कहने की, समझने की बात यह है कि इक्विटी शेयर का नंबर कब आएगा? जब सबसे पहले डिबेंचर पे ऑफ हो चुका हो, उनका इंटरेस्ट, प्रीफरेंस वालों को जो डिविडेंड एग्रीमेंट है टू द एक्सटेंट उतना रुपए का डिविडेंड इनको मिल चुका हो, फिर अगर फंडिंग बचेगी तो इक्विटी वालों का नंबर आ जाएगा। फिलहाल की वैल्यू 2,000 रुपए। तो हमने ये भी मान लिया कि साहब 15,000 का बंटवारा कैसे कैसे होना है। अब एक कंडीशन और मान के चलते हैं कि मान लो फर्म का प्रॉफिट 20,000 का होता है, तो अगर फर्म का प्रॉफिट 20,000 का होता है तो बंटवारा कैसे कैसे होगा? तो फर्म का प्रॉफिट 20,000 होने पर डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट में इनको 8,000 ही मिलेंगे। डिबेंचर होल्डर को ना 1 रुपया कम मिलेगा ना 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। आपकी फर्म को प्रॉफिट हो तो उसके 8,000 पक्के, 8,000 मतलब एज पर एग्रीमेंट। तो उसमें तो उसके एग्रीमेंट के मुताबिक अमाउंट फिक्स है, उसमें बिजनेस को प्रॉफिट हो तो, लॉस हो तो डिबेंचर होल्डर को उसकी पैसे मिलेंगे। लेकिन जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाला होगा उसको इस केस के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा 5,000 रुपए, जो उसको प्रीफरेंस की अधिकार मिला हुआ है। तो 8 इसको मिल गए और 5 इसको मिल गए, अभी कितना मिल गया? 13,000। जब चूंकि 5 इनको मिल गए हैं तो 5,000 रुपए इनको भी मिल जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। तो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हो चुका? 18,000 का। बचे कितने? 2,000। अब कंपनी की मीटिंग होगी, एजीएम होगी, कंपनी डिसाइड करेगी कि जो बचे हुए 2,000 है वो 2,000 रुपए में से हम कुछ पैसे 1,000 रुपए इनको दे दें, 1,000 रुपए इनको दे दें, या 500 इनको दे दें और 1,500 इनको दे दें, या फिर इनको कुछ नहीं दें, पूरे 2,000 रुपए इनको दे दें, या फिर हम इनको भी कुछ नहीं दें, इनको भी कुछ नहीं दें और 2,000 रुपए रिटेन अर्निंग में रखे रहते हैं। तो ये सारा के सारा डिसीजन कंपनी तय करती है कि कंपनी को कितना कितना पैसा बांटा जा रहा है। 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन 8, 5 और 5 के सीक्वेंस में इस प्रकार से हो जाने का है। तो ये जो मैंने एक आपको ड्राफ्टिंग दी, ये इंडिकेट कर रही है कि बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे कैसे करके होता है। तो पहली बात यह है कि डिबेंचर होल्डर को हर हालत में उसके इंटरेस्ट एग्रीमेंट के मुताबिक पैसे जरूर मिलेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाले को प्रीफरेंशियल राइट है अगर प्रॉफिट हुआ तो, लेकिन वो प्रीफरेंस राइट किनके अगेंस्ट है? इक्विटी के अगेंस्ट। और जितना उसका एग्रीमेंट परसेंटेज चल रहा है उस अमाउंट पर, उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो इंटरेस्ट एंटाइटल्ड, डिविडेंड एंटाइटल्ड है। और इसी तरीके से अब अगर पैसे फिर भी बच गए तो बचे हुए पैसों के लिए इक्विटी शेयर होल्डर वाले का नंबर आएगा। इक्विटी शेयर का नंबर 3rd है। जब प्रीवियस लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगी तो इक्विटी का नंबर आएगा, अन्यथा इक्विटी का नंबर नहीं आएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन डिबेंचर, प्रीफरेंस शेयर्स एज वेल फॉर इक्विटी शेयर। दोनों तीनों इंपॉर्टेंट सोर्स हैं बिजनेस के अंदर में फाइनेंस अरेंज करने के। तो डिबेंचर के थ्रू भी फाइनेंस अरेंज होता है, प्रेफरेंस के थ्रू भी होता है, इक्विटी के थ्रू होता है।
तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक डिफरेंस वाली बात थी कि इन चीज़ों में डिफरेंसेस कौन से प्रकार से एडजस्ट होते हैं, वर्किंग का पैटर्न कैसे चलता है, कौन सा वाला वर्किंग प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. So thanks students for watching this video, and please try to share and like this video for further convenience. Thanks.